China is a great friend of Pakistan. This friendship means a lot for both the countries. President Xi Jinping is a visionary leader. China is again ready to support Pakistan to make this CPEC 2.0 not only a great reality, but a great success story in the field of agriculture, IT, AI, mines and minerals. Chinese business houses are more than willing to shake hands with Pakistani business houses. معاشی اشاریے مستحکم ہو رہے ہیں. زرعی شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی ضرورت ہے. جدید ٹیکنالوجی، تحقیق، ویلیو ایڈیشن اور زرعی برآمدات میں اضافے سے پاکستان تجارتی سرپلس حاصل کر سکتا ہے. صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین اقتصادی ترقی کے منازل طے کر رہا ہے. سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے. سی پیک فیز 2 کے تحت روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان چین زرعی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت نے گزشتہ سال 3% سے زیادہ ترقی کی. چین پاکستان کے ساتھ زرعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. عالمی اقتصادی ترقی میں چین کا حصہ 30% ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے. پاکستان میں چین کے سفیر جیونگ زیڈونگ کا خطاب. جن لوگوں شہادت ہوئی ہے، جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں، ہم حکومت سندھ کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ ان کو دیں گے، اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا. سانحہ گل پلازہ، جاں بحق افراد کی تعداد 26 ہو گئی. 76 افراد لاپتہ. جاں بحق افراد کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے. کمشنر کراچی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم. لاپتہ افراد کی تلاش ترجیح. نقصانات کا جلد تخمینہ لگائیں گے. متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس. سانحہ گل پلازہ، شہر قائد میں سوگ، ملک بھر میں عوام افسردہ. سانحہ میں جاں بحق فائر فائٹرز فرقان کی نماز جنازہ ادا. لوگ اپنے لاپتہ پیاروں کی تلاش میں سرگرداں. ڈی این اے کے ذریعے لاشوں کی شناخت کا عمل جاری. 5 نشاندہی شدہ پوائنٹس پر سرچ آپریشنز جاری. آتش زدگی کے باعث گل پلازہ کے 2 حصے منہدم. عمارت انتہائی خستہ حال، کسی بھی وقت گر سکتی ہے. ریسکیو حکام. کراچی میں کاروبار کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے. صوبائی حکومتی ادارے تجارتی عمارتوں کے معائنے کے ساتھ ساتھ عوام اور تاجروں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں. سانحہ گل پلازہ نے کئی زندگیاں نگل لیں. ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے. سرکاری سطح پر غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. تاجروں کی ہنگامی پریس کانفرنس. سینٹ اجلاس میں بھی سانحہ گل پلازہ کراچی پر ارکان کا شدید دکھ اور افسوس کا اظہار. جاں بحق افراد کے ایصال ثواب کے لیے دعا. سانحہ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ. سینٹ میں انسداد اسمگلنگ تارکین وطن ترمیمی بل 2024، ذہنی صحت ترمیمی بل 2025 اور پاکستان نرسنگ کونسل ترمیمی بل 2024 سمیت متعدد بلز منظور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے عالمی اور علاقائی سمیت 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے مکالمے اور تعاون کی اہمیت پر گفتگو. ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر بات چیت جاری رکھنے کا عزم. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی ہم منصب محمد الجدعان سے داووس میں ملاقات. عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں پاکستان کی معاشی پیش رفت پر تبادلہ خیال. پاکستان اور سعودی عرب کی دیرینہ اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو. پاکستان کی معیشت استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے. حکومت کی توجہ مستحکم کرنٹ اکاؤنٹ اور پائیدار معاشی ترقی پر ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب.
عالمی اقتصادی فورم کا سالانہ اجلاس آج سے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں شروع ہو رہا ہے۔ 5 روزہ اجلاس میں 65 سے زائد ملکوں کے سربراہ اور 850 سے زیادہ کمپنیوں اور تنظیموں کے مندوبین شرکت کریں گے۔ اس سال فورم کا موضوع مکالمے کا جذبہ ہے، جس کا مقصد موجودہ عالمی صورتحال اور جیو پولیٹیکل چیلنجز کے دوران مذاکرات، مکالمے اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس میں 2662 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,87,761 پر بند، 63 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وفاقی سیکریٹری اطلاعات اشفاق احمد خلیل اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر مبشر حسن کی ملاقات۔ وفاقی وزیر نے چیئرمین سینٹ کو بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کا ڈیجیٹل ایلبم پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کانفرنس کی شاندار میڈیا کوریج پر وفاقی وزیر اطلاعات اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ ملک کے مسائل حل کرنا سب کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کو اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے سیوان میں کئی بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہو کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ بلوچستان کی ترقی قوم کا خواب ہے، وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ حکومت مدارس کے نظام میں کسی قسم کی مداخلت چاہتی ہے اور نہ ہی دینی نصاب میں تبدیلی اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ حکومت پنجاب اور مختلف مدارس بورڈ کے نمائندوں کے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری۔ مدارس و مساجد کے معاملات کو افہام و تفہیم اور مذاکرات سے حل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ مدارس رجسٹریشن جلد مکمل کرنے اور فیصلے مشاورت سے کرنے پر متفق۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت 5.8، گہرائی 10 کلومیٹر ہے۔ مرکز شمال مغربی کشمیر تھا۔ زلزلے سے ہنزا میں 30 کچے مکانات گرنے کی اطلاعات، مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سعودی عرب میں کثیر ملکی اسپیئرز آف وکٹری مشق کا انعقاد۔ پاکستان ایئر فورس کے دستے کی مشق میں شرکت، F-16 بلاک 52 طیاروں کی BVR صلاحیتوں کا عملی استعمال، جدید جنگی ماحول میں PAF کی آپریشنل تیاری کا مظاہرہ، مشق میں انٹیگریٹڈ ISR آپریشنز شامل۔ پاکستان کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں، بات وہی ہوئی اسی ٹائم تک اس خطے میں امن اور پیس نہیں آئے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو۔ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے۔ بھارت نے گزشتہ 75 سالوں سے کشمیریوں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھارت کی ہر دھرمی نے خطے کا امن داؤ پر لگا رکھا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا جنوبی افریقہ میں تقریب سے خطاب۔ مودی دور میں متنازع قوانین کے ذریعے جبر کا نظام نافذ، بھارتی سرکار کے خلاف اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے سے لے کر مسلمانوں کو ہندوتوا نظریے کی بھیٹ چڑھانا فاشسٹ مودی کا وتیرہ بن گیا۔ عالمی جریدے DW نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کو بھارتی عوام کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ دلی فسادات کیس میں عمر خالد اور شرجیل امام 5 سال سے بغیر مقدمے کے جیل میں قید ہیں۔ نام نہاد قومی سلامتی کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی ظلم تاحال جاری ہے۔ جریدہ DW۔
जनवरी में रूनुमा होने वाले कत्लेआम के सानिहात भारत की खूनरेजी की अलामत। मकबूजा कश्मीर में मगर मलबाग कत्लेआम के 35 बरस मुकम्मल। भारतीय फोर्सेस ने अंधाधुंध फायरिंग करके 14 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 1990 जनवरी के ही महीने में गांव कदल के में 50 से जायद पुरम मुजाहिरीन कत्ल और हिंदवाड़ा में 25 कश्मीरी शहीद हुए। भारत तमाम तर जुल्म के बावजूद कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को कमजोर करने में नाकाम। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीरियों के कत्लेआम के तमाम सानेहात की बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालिबा। भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात ने भारतीय और अफगान मीडिया की पाक फौज के खिलाफ जाली खबरों की कलई खोल दी। सोशल मीडिया पर तासुर देने की कोशिश की गई कि फौज बलूचिस्तान में आम किसानों का जरिया माश तबाह कर रही है। दर हकीकत वीडियो बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन की है। एफसी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ऑपरेशन का मकसद मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई और दहशतगर्दों की फंडिंग रोकना है। अफगान मुहाजिरीन मेजबान ममालिक के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज। अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी की कार्रवाइयां मजीद तेज। जर्मनी और ईरान के बाद तुर्की में भी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन में शिद्दत, गिरफ्तारियों की नई लहर। तुर्की के शहर शानले अरफा में 14 मजीद गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीन गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को फौरी तौर पर डेपुटेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अफगानिस्तान इंटरनेशनल। Straight through. Bowled again. 2 in the first over. 1 wicket. More now. That looks like आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। कौमी अंडर 19 टीम की स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 188 रन का हदफ 44वें ओवर में हासिल किया। उस्मान खान ने 75 और अहमद हुसैन ने 47 रन स्कोर किए। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 विकेटें हासिल की। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। In a bit of पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज। ऑस्ट्रेलिया ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मशल माश ऑस्ट्रेलवी टीम की क़यादत करेंगे। सीरीज का आगाज 29 जनवरी को होगा। दूसरा मैच 31 जनवरी और तीसरा 1 फरवरी को शेड्यूल है। सीरीज के तीनों मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। Supreme Senegal. Maybe in extra time they produced the moment. And it's Pablo Stella. अफ्रीका कप ऑफ नेशंस सेनेगल ने मराकश को हराकर दूसरी बार टाइटल जीत लिया। फाइनल मैच मुतनाज़ फैसलों और हंगामा खेज मनाजिर के बायस खबरों की जीनत बना रहा। पॉप गाय ने मैच का फैसला गुल करके सेनेगल को चैंपियन बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। गैस के इस्तेमाल में लाजिम है एहतियात। गैस लीकेज की सूरत में बिजली का कोई स्विच ऑन ऑफ न करें। मेन वॉल बंद कर दें। खिड़कियां दरवाजे खोल दें। माचिस हरगिज न जलाएं। गैस के गैर मयारी आलात का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। गैस लीकेज की फौरी तला 1199 पर दें। सुई नॉर्दर्न गैस, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना।
वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है और उड़ान पाकिस्तान को नई जेहत मिल रही है। इसी तसलसल में बीजिंग में मुनक्किद होने वाली पाक चाइना B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के बाद अब पाकिस्तान बन रहा है मेजबान चाइना पाकिस्तान ज़राई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 19 जनवरी 2026 इस्लामाबाद। ये है सीपैक का दूसरा मरहला। 10 तरजीही शोबे जिनमें सरमायाकारी के काबिल अमल और पायदार मौक़े मौजूद हैं। ये ज़राई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस नए MOUs और मुश्तरका मंसूबों की राह हमवार करेगी। 1000 पाकिस्तानी तलबा चीन में जदीद ज़राई तरबियत हासिल कर रहे हैं। आप चीन जा रहे हैं, सिर्फ मेरिट पर आपकी सिलेक्शन हुई है, टेक्नोलॉजी लेके आए। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के तमाम मकामी और बैन अल-अक़वामी शुरका को तहे दिल से खुशामदीद कहता है। हुकूमत पाकिस्तान। देखिएगा काम करते करते वहाँ पे चक्कर आके सीने में दर्द होते गिर गया। सेहत कार्ड की वजह से RSC में मेरा मुफ्त ऑपरेशन हुआ। मैं वज़ीर आज़म का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड अवाम के लिए मुफ्त इलाज का एक तारीखी संगमील। अवामी खिदमत की रोशन रिवायत को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का अवाम के लिए नए साल का तोहफा 40 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद विफाक़ी इलाका आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का आगाज, जिससे मिले हर खानदान को मुल्क के 600 से जायद निजी और सरकारी अस्पतालों में 10 लाख रुपए सालाना तक का मुफ्त और मयारी इलाज, वो भी इज्जत और एहतराम के साथ। मुफ्त इलाज के लिए अब आपको किसी इजाफी कार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि कौमी शनाख्ती कार्ड ही आपका वज़ीर आज़म सेहत कार्ड है। मज़ीद मालूमात के लिए 0800-090009 पर मुफ्त कॉल करें। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड, सेहतमंद अवाम, तवाना पाकिस्तान, कौमी सेहत सहूलत प्रोग्राम, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी, तहक़ीक़, वैल्यू एडिशन और ज़राई बरामदात में इजाफे से पाकिस्तान तिजारती सरप्लस हासिल कर सकता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म की खिताब की तफसील शेयर कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़राई मईशत है जिसमें तरक्की की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। जदीद टेक्नोलॉजी, तहकीक, वैल्यू एडिशन और चीन जैसे करीबी दोस्त मुल्क के ताउन से पाकिस्तान ज़राई शोबे में गैर मामूली तरक्की कर सकता है। Pakistan is essentially an agrarian economy. Its potential is unlimited. The only thing is to put together today's requirements in terms of how to enhance our per acre yield through modern techniques. Alhamdulillah, we have made certain achievements, but then it's a long way to go. What to grow and what to export, how to have value chain, cold chain, storage capacity, value addition. वजीर आजम ने चीन को पाकिस्तान का मुखलिस और आजमूदा दोस्त करार देते हुए कहा कि चीनी कारोबारी इदारे ज़राई शोबे में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। China is a great friend of Pakistan, a friend who has stood through thick and thin. Pakistani and Chinese entrepreneurs, both at B2B and G2G, signed MOUs, and I was very happy to express my satisfaction over the progress we are making. Chinese business houses are more than willing to shake hands with Pakistani business houses and to really convert those MOUs into agreements. वजीर आजम ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज क़यादत में चीन इक्तसादी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। सीपैक एक गेम चेंजर मंसूबा है। ज़राअत, IT, AI, मादिनियात और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। This friendship means a lot for both the countries. President Xi Jinping is a visionary leader. He has transformed not only China's economy, but he believes in
truly believes in multilateralism. China is again ready to support Pakistan to make this CPEC 2.0 not only a great reality, but a great success story in the field of agriculture, in the field of IT, AI, mines and minerals, and of course, our youth bulge, which is a challenge as well as a great opportunity. वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में अफरात ज़र की शरह और पॉलिसी रेट में कमी और बरामदात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। मुआशी इशारिये मुस्तहकम हो रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत की तवज्जो तरक्की की जानिब मरकूज है। विफाकी वजीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चीन की कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान के ज़रई शोबे में सरमायाकारी खुशाइंद है। चीन के पाकिस्तान में सफीर जियांग ज़ीडोंग ने कहा कि आलमी इक्तिसादी तरक्की में चीन का हिस्सा तकरीबन 30% है। ये बात काबिल सताइश है कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बाएतमाद क़यादत में पाकिस्तान की मईशत ने गुज़िश्ता साल 3% से ज़ायद तरक्की की। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ ज़रई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने समेत हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में होने वाली पाकिस्तान चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में 115 चीनी और 165 पाकिस्तानी कंपनीज ने शिरकत की। इसका अहवाल जानते हैं हुसैन रजा की इस रिपोर्ट में। पाक चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में ज़रई शोबे में जिद्दत पसंदी और चीनी सरमायाकारी का फ़रोग पाकिस्तान को एक ज़रई कुव्वत बनाने के लिए अहम करार दिया गया है। शुरका ने चीन को पाकिस्तान का मुखलिस और आजमूदा दोस्त करार देते हुए दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। डेफिनेटली हम चाइना से उसका फ़ायदा भी लेंगे। हम एक्सपोर्ट्स करते हैं बहुत सारी चीज़ें, मकई हो गई, सीसम सीड हो गई, चावल हो गया, वो हम रेगुलर बेसिस पे चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके आने वाले दिनों में बड़े अच्छे नताइज हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मौक़े हैं जिसमें ना सिर्फ नई क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, डाइवर्सिफाई की जा सकती हैं, बल्कि लाइफ स्टॉक में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिशरीज में भी हैं। शुरका ने कहा कि सीपैक एक गेम चेंजर मंसूबा साबित हो रहा है। चीन ने इक्तिसादी तरक्की के मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तान और चाइना दोनों की इन्वेस्टमेंट को ये बूस्ट करेगा। इस तरह के इनिशिएटिव हमारे होने चाहिए ताकि हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सके। कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी हुई, जिनमें मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के नए मौके और मुश्तरका मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाक चीन हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का अयादा किया गया। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के मौके पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जिदआन से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और दो तरफ़ा इक़्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में हालिया मौशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी क़यादत के मुसलसल ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी आई है। शरह नमू पहली सहमाही में बढ़कर 3.7% हो गई है और तरसीलात ज़र रवां साल 41 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने निजकारी के अमल में शफाफियत और PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने मुल्क में निजकारी के कामयाब तजुर्बात, खुसूसन हवाई अड्डों की मिसाल देते हुए इस्लाहात की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर अपनी बातचीत जारी रखने की तवक्को ज़ाहिर की और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें हालिया इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और कसीर जहती उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुसलसल राबते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया और आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम दावोस के मौके पर मुलाकात पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई उमूर और मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू के साथ साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन मुसलसल रवाबित को सराहा।
नाज़रीन, कराची में सानेह गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 76 अफराद ताहाल लापता हैं। तफसील शेयर कर रहे हैं सैयद जहांगीर अली। सानेह गुल प्लाजा पर कराची में फिजा सोगवार रही, जबकि जहां बाग अफराद के साथ साथ लोग अपने प्यारों की तलाश में भी सरकर्दा रहे। सानेह में जहां बाग फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वहीं पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक लाशों की शनाख्त DNA के जरिए की जा रही है। दूसरी जानिब गुल प्लाजा पर आग बुझाने के साथ साथ कूलिंग का सिलसिला भी जारी है, जबकि इमारत का स्ट्रक्चर शदीद मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से ऑपरेशन मरहलावार और इंतहाई एहतियात के साथ किया जा रहा है। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे के मुकाम पर 5 निशानदही शुदा पॉइंट्स पर 3 सर्च ऑपरेशन जारी हैं, जबकि खुसूसी टीम मुसलसल फायर फाइटिंग और कूलिंग के अमल में मसरूफ है, ताकि रेस्क्यू एहलकारों के लिए महफूज माहौल बरकरार रखा जा सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस और खिताब करते हुए कहा कि सानेह गुल प्लाजा में होने वाले नुकसानात के जायजे के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने और दुकानदारों को मुतबादिल जगह फराहम करने पर भी गौर कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं, और मैंने कमिश्नर साहब को कहा हुआ है कि वो जल्द से जल्द उनके डिटेल्स लेके और वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दे। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि आग बुझाने के अमल में 24 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, 10 वाटर बाउजर और 4 स्नार्कल गाड़ियां शामिल थीं। उन्होंने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तकरीबन 100 फायर फाइटर और रेस्क्यू 112 के मजीद 100 एहलकारों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिजनेस फोरम के सदर इश्तियाक बेग ने फोरम के दीगर ओहदेदारान के हमरा गुल प्लाजा का दौरा किया। FPCCI में भी ताजरों ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कारोबार करने के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए, जबकि सूबाई हुकूमती इदारे बिल्डिंग की इंस्पेक्शन के साथ साथ अवाम और ताजरों की हिफाजत को यकीनी बनाए। ताजिर बरादरी ने कहा कि सानिया ने कई जिंदगियां गुल करने के साथ साथ बड़ी तादाद में खानदानों को बेरोजगार कर दिया है, हुकूमत इसका अजाला करे। ताजरों ने मुतालबा किया कि सानिया में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मज़ीद तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। सेनेट इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में हुआ। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए पार्लिमानी उमूर के वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द शहरियों को निशाना बना रहे हैं। हम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों दोनों के खिलाफ हैं। माजी में दहशतगर्दी का खात्मा अस्करी कार्रवाइयों से ही मुमकिन हुआ। इस वक्त KP गवर्नमेंट की एक दोगली पॉलिसी जो है वो देखने में आ रही है। ये एक मुंह से ये बात करते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी हुकूमत के साथ हैं, हम रियासत के साथ खड़े हैं, लेकिन अगले ही मिनट में ये कहते हैं जनाब के फौजी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन के हम सरीअन खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान में अमन दहशतगर्दों का खात्मा करने के बाद ही मुमकिन हो सका था। सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा कि PTI के दौर में मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर थी। PTI नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में भी बुरी तरह नाकाम रही। सेनेटर शेरी रहमान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुल प्लाजा वाक़ये पर अफसोस है। सिंध हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है, इस वाक़ये पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अरकान सेनेट ने सानेहा कराची और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात पर इजहार ख्याल करते हुए अपना नुक्ता नजर पेश किया। ऐवान में सानेहा कराची में जामबहक अफराद के लिए दुआ भी की गई। सेनेट ने इंसदाद स्मगलिंग, तारिकीन वतन तरमीमी बिल 2024, जहनी सेहत तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल तरमीमी बिल 2024 समेत मुतअद्दिद बिल भी मंजूर कर लिए। सेनेट इजलास मंगल की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी हो गया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। मियारी और जदीद गैस आलात इस्तेमाल करें ताकि आप गैस लीकेज से बच सके। कंप्रेसर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर फौरन 1199 पर इतला दें। सुई नॉर्दर्न गैस, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है और उड़ान पाकिस्तान को नई जेहत मिल रही है। इसी तसलसल में बीजिंग में मुनक्किद होने वाली पाक चाइना B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के बाद अब पाकिस्तान बन रहा है मेजबान चाइना पाकिस्तान ज़राई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 19 जनवरी 2026 इस्लामाबाद। ये है CPEC का दूसरा मरहला। 10 तरजीही शोबे जिनमें सरमायाकारी के काबिल अमल और पायदार मौक़े मौजूद हैं। ये ज़राई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस नए MOUs और मुश्तरका मंसूबों की राह हमवार करेगी। 1000 पाकिस्तानी तलबा चीन में जदीद ज़राई तरबियत हासिल कर रहे हैं। आप चीन जा रहे हैं, सिर्फ मेरिट पर आपकी सिलेक्शन हुई है, टेक्नोलॉजी लेके आए। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के तमाम मकामी और बैन अल-अक़वामी शुरका को तहे दिल से खुशामदीद कहता है। हुकूमत पाकिस्तान। देखिएगा काम करते करते वहाँ पे चक्कर आके सीने में दर्द होते गिर गया। सेहत कार्ड की वजह से RIC में मेरा मुफ्त ऑपरेशन हुआ। जी मैं वज़ीर आज़म का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड अवाम के लिए मुफ्त इलाज का एक तारीखी संगमील, अवामी खिदमत की रोशन रिवायत को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का अवाम के लिए नए साल का तोहफा 40 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद विफाक़ी इलाका आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म सेहत कार्ड का आगाज, जिससे मिले हर खानदान को मुल्क के 600 से जायद निजी और सरकारी अस्पतालों में 10 लाख रुपए सालाना तक का मुफ्त और मयारी इलाज, वो भी इज्जत और एहतराम के साथ। मुफ्त इलाज के लिए अब आपको किसी इजाफी कार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि कौमी शनाख्ती कार्ड ही आपका वज़ीर आज़म सेहत कार्ड है। मज़ीद मालूमात के लिए 0800-090009 पर मुफ्त कॉल करें। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड, सेहतमंद अवाम, तवाना पाकिस्तान, कौमी सेहत सहूलत प्रोग्राम, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। इस दौरान पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहा। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी अजला में दरमियानी धुंध छाई रही। सबसे ज़्यादा बारिश कालाम में 7, पटन और मालम जब्बा में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कालाम में 3.5 और मालम जब्बा में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। और अब बात करते हैं आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो लह -8, गोपिस -6, स्कर्दू -5, बगरोट, पाड़ा चनार और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत इसका हाल आपने मुलाहिजा किया। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया कदीर। कौमी असम्बली ने रेलवे के मुंतकली तरमीमी बिल 2025, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड तरमीमी बिल 2026 और नेशनल टैरिफ कमीशन तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। वक्फ़े सवालात में वफाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ऐवान को बताया कि गुज़श्ता सालों की निस्बत मुल्क में गैस की सूरत हाल बेहतर है। घरेलू सारिफीन को रवां साल 800 के बजाय 1000 MMCDF गैस फराम की जा रही है। तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में फ़र्नीचर एक्सपो के लिए 1 साल में 6 NOCs जारी किए गए। फ़र्नीचर एक्सपो में मकामी दुकानदार भी शामिल होते हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्की मफाद में उठाए गए हर कदम में हुकूमत के साथ खड़े होंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर पर इज़हार ख्याल करते हुए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क में जारी सियासी इंतशार ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करना होगा। 2025 में
पाकिस्तान के मसाइल को हल करना, पाकिस्तान में इस वक्त जो टेंशन है, पाकिस्तान में जो इस वक्त एक पॉलिटिकल प्रोलिफरेशन है और आपस में एक तकसीम है जो आपको नज़र आ रही है, उसे दूर करना, ये हमारी भी अव्वलीन तरजीहात में से है। बैरिस्टर गौर साहब बैठे हैं, इसी चेयर पे जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको मुज़ाकरात की दावत दी, आपसे हाथ मिलाया, खैरियत दरियाफ्त की और हम साथ थे। उन्होंने कहा कि हमें बैठना है और बैठने की ज़रूरत है क्योंकि तमाम मसाइल का जो हल है वो बैठ के एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए ही आगे निकल सकता है। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास हो रहा है। 5 रोज़ा फोरम में मईशत और मौसमियाती तब्दीली समेत दुनिया को दरपेश दीगर चैलेंजेस और उनके हल से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मज़ीद तफ़सील जानते हैं डावोस में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकराम चौधरी से। आलमी इक़्तिसादी फोरम के 5 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं और मंदोबीन की आमद का सिलसिला जारी है। इस फोरम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 65 से ज़्यादा मुल्कों के जो रहनुमा हैं वो शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस और 850 से ज़्यादा जो आलमी तंजीमें और कंपनियां हैं उनके जो सरबराह हैं वो भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 3000 से ज़्यादा मंदोबीन जो है वो इस 5 रोज़ा इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में पॉलिसी साजी के अलावा जो इक़्तिसादी सिमत का तयन करने के हवाले से ये फोरम इंतहाई अहमियत का हामिल है। आलमी सतह पर जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल है और इक़्तिसादी टकराव के जो मामलात हैं उसके तनाज़ुर में इस फोरम का जो मौजू है वो है मुकालमे का जज्बा, जिसका मकसद ये है कि जो मसाइल के हल के लिए जो मुल्कों के दरमियान ताउन है और जो ताउन का फ़रोग है और जो मसाइल का हल है उसको मुकालमे और मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। इस फोरम में मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं, मौसमियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, मसनूई ज़हानत है, डिजिटल मईशत है और इसके अलावा जो तरक्की पजीर मुल्कों को मसाइल दरपेश हैं उनके ऊपर भी तबादला ख्याल होगा। 200 से ज़्यादा सेशंस होंगे जिनमें जो आलमी रहनुमा हैं और जो पॉलिसी साज हैं और एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना तबादला ख्याल करेंगे और फ्यूचर के लाहे अमल के हवाले से जो अपनी राय देंगे। जी बहुत शुक्रिया। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद इकराम चौधरी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात इशफाक अहमद खलील और PIO मुबश्शर हसन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर इत्तलात ने वफ़द के हमरा चेयरमैन सेनेट को बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का डिजिटल एल्बम पेश किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कॉन्फ्रेंस की शानदार मीडिया कवरेज पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की रोशनी में आलमी निज़ाम के क़याम के अज़्म का इआदा किया गया और आलमी अमन और पायदार तरक्की के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 2662 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,87,761 पर बंद हुआ। तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास से। हुकूमत की इक्तसादी और खारजा पॉलिसीज अपना असर दिखा रही हैं। जहां एक तरफ बेहतर इक्तसादी पॉलिसी से मुल्क की मईशत तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, वहीं दूसरी जानिब मौसर खारजा पॉलिसी की बदौलत आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हो रहा है। सरमायाकार हुकूमत की इन पॉलिसी से मुतमईन नजर आते हैं और भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। CPEC 2 के दौरान पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर 44 नए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क में मजीद सरमायाकारी आएगी बल्कि मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। रवा माली साल में अब तक पाकिस्तान की ज़री एक्सपोर्ट्स 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो कि खुशाइंद है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आज एक और संगे मील अबूर किया। तकरीबन 20 साल के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,194 अरब रुपए से तजावज कर गई है, जो कि मार्केट की बढ़ती हुई अहमियत को जाहिर करती है। सेक्टर इन लाइन है उनमें ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें रिकॉर्डिंग के हवाले से सर्कुलर डेथ के खात्मे के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसके आसार देखने में आ रहे हैं। कार फाइनेंसिंग की बात करें तो लास्ट मंथ 312 अरब से ज्यादा की कार फाइनेंसिंग हुई है। साथ ही हमने देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 33% बोइंग बैंक से ज़्यादा इंक्रीज की है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब हमारी इकॉनमी सर्वाइवल मूड से निकल के अब टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। ख़ासतौर पर हमारे रिजर्व 21 अरब डॉलर से ज़ायद आ गए हैं, जिसके असर मार्केट के ऊपर पॉजिटिवली नज़र आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो डिफेंस पैक हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पॉजिटिव ले रही है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 562 कंपनियों के शेयर से कारोबार हुआ, जिसमें 278 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी
तेजी, 167 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 117 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 63 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत के 5,07,000 सौदे हुए, जिसमें 1 अरब 19 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट और ऑयल एंड गैस की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान का इस साल खलीज ताउन काउंसिल के मुल्कों में तकरीबन 8 लाख शहरियों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने का हदफ। खलीज टाइम्स ने हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को मईशत की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान रमा साल UAE और दीगर ममालिक में 8 लाख मुलाजमतों के हुसूल का इरादा रखता है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस तादाद में 60,000 का इजाफा किया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक 2025 में मुल्क की अफरादी कुव्वत की बरामद 7,40,000 थी। खलीज टाइम्स के मुताबिक खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक में 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने गुज़श्ता बरस तकरीबन $40 अरब पाकिस्तान भिजवाए। गुज़श्ता साल दिसंबर में इटली ने भी सेहत और ज़राअत के शोबों में 10,500 मुलाजमतें पाकिस्तान को फराहम की। बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े पैदा करना, हुनरमंदी के फ़रोग़ और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी हैसियत रखते हैं। खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है और उड़ान पाकिस्तान को नई जेहत मिल रही है। इसी तसलसल में बीजिंग में मुनक्किद होने वाली पाक चाइना B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के बाद अब पाकिस्तान बन रहा है मेजबान चाइना पाकिस्तान ज़राई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 19 जनवरी 2026 इस्लामाबाद। ये है CPEC का दूसरा मरहला। 10 तरजीही शोबे जिनमें सरमायाकारी के काबिल अमल और पायदार मौक़े मौजूद हैं। ये ज़राई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस नए MOUs और मुश्तरका मंसूबों की राह हमवार करेगी। 1000 पाकिस्तानी तलबा चीन में जदीद ज़राई तरबियत हासिल कर रहे हैं। आप चीन जा रहे हैं, सिर्फ मेरिट पर आपकी सिलेक्शन हुई है, टेक्नोलॉजी लेके आए। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के तमाम मकामी और बैन अल-अक़वामी शुरका को तहे दिल से खुशामदीद कहता है हुकूमत पाकिस्तान। देखिएगा काम करते करते वहाँ पे चक्कर आके सीने में दर्द होते गिर गया। सेहत कार्ड की वजह से RSC में मेरा मुफ्त ऑपरेशन हुआ। मैं वज़ीर-ए-आज़म का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड अवाम के लिए मुफ्त इलाज का एक तारीखी संगमील। अवामी खिदमत की रोशन रिवायत को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का अवाम के लिए नए साल का तोहफा 40 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद विफाकी इलाका आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड का आगाज, जिससे मिले हर खानदान को मुल्क के 600 से जायद निजी और सरकारी अस्पतालों में 10 लाख रुपए सालाना तक का मुफ्त और मयारी इलाज, वो भी इज्जत और एहतराम के साथ। मुफ्त इलाज के लिए अब आपको किसी इजाफी कार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि कौमी शनाख्ती कार्ड ही आपका वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड है। मज़ीद मालूमात के लिए 0800-09-009 पर मुफ्त कॉल करें। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड, सेहतमंद अवाम, तवाना पाकिस्तान, कौमी सेहत सहूलत प्रोग्राम, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। तवानाई के वफाकी वज़ीर सरदार अवैस अहमद ग़ारी ने कहा है कि बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के तमाम शोबों में जामे इस्लाहात जारी हैं। गर्दिशी कर्जे में 780 अरब रुपए तक की कमी हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसी का नतीजा है। इस्लामाबाद में वर्ल्ड बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक के वफूद से मुलाकात में वफाकी वज़ीर ने पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात के बारे में ब्रीफ किया। अवैस अहमद खान ग़ारी ने कहा कि तवानाई शोबे में पायदार और मौसर इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आलमी मालियाती इदारों के साथ शराकतदारी तवानाई के चैलेंजेस से निपटने के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि IGCEP से महंगी बिजली मंसूबों को निकालने से सारिफीन को $17 अरब का मुमकिन रिलीफ मिला। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दरामदी कोयले पर चलने वाले बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल किया जा रहा है।
کثیر الملکی اسپیئرز آف وکٹری مشق 2026 میں شرکت کے لیے پاکستان ایئر فورس کا دستہ سعودی عرب پہنچ گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے F-16 بلاک 52 طیارے اس مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان طیاروں نے پاکستان سے سعودی عرب تک نان اسٹاپ پرواز بھی کی۔ ISPR کے مطابق مشق میں پاکستان سمیت 10 ملکوں کی فضائی افواج شریک ہیں۔ مشق میں نائٹ کمپوزٹ ایئر آپریشنز، الیکٹرانک وارفیئر، انٹیگریٹڈ ISR آپریشنز اور BVR صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ شامل ہے۔ یہ مشق عالمی فضائی افواج کے ساتھ پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اجاگر کرنے میں اہم ثابت ہوئی۔ ناظرین، مودی سرکار کے دور میں بھارت متنازع قوانین کے ذریعے جبر کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ نام نہاد سیکولر بھارت میں آمرانہ پالیسیاں معمول بن چکی ہیں، جہاں اظہار رائے کی آزادی سلب اور مسلمانوں کو ہندوتوا نظریے کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ عالمی جریدے DW کے مطابق غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا ایکٹ UAPA بھارتی عوام کے لیے خطرناک قانون بن چکا ہے، جس کے تحت برسوں سے بغیر مقدمہ قید معمول ہے۔ دہلی فسادات کیس میں عمر خالد اور شرجیل امام 5 سال سے جیل میں ہیں، جبکہ سپریم کورٹ ضمانت مسترد کر چکی ہے۔ بھارتی کمیونسٹ رہنما برندراکرات کے مطابق فسادات کے 18 میں سے 16 ملزمان مسلمان ہیں، جبکہ BJP رہنما آزاد ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت متنازع قوانین کو اقلیتوں کے خلاف ہتھیار بنا کر نہ صرف اندرونی بلکہ علاقائی عدم استحکام کو بھی فروغ دے رہی ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں آج مگرمل باغ قتل عام کو 35 برس مکمل ہو گئے۔ KMS کے مطابق کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ 1990 میں آج کے دن سری نگر کے علاقے مگرمل باغ قتل عام سے شروع ہوا تھا۔ بھارتی پہلا ملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے اس دن اندھا دھند فائرنگ کر کے 14 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔ بھارتی فوجیوں نے 1990 میں جنوری ہی کے مہینے میں گاؤں کدل میں 50 سے زائد پرامن مظاہرین کو قتل کر دیا تھا، جبکہ ہندواڑہ میں 25 کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔ مگرمل باغ کا قتل عام اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ ظلم و بربریت کشمیری عوام کو آزادی کے جائز مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت تمام تر ظلم و بربریت کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں رونما ہونے والے کشمیریوں کے قتل عام کے تمام سانحات کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر بھارتی پولیس کی طرف سے پورے مقبوضہ علاقے میں مساجد، علماء کرام اور انتظامی کمیٹیز کی سخت پروفائلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض انتظامیہ ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے کی آڑ میں ائمہ مساجد اور علماء کرام کی ذاتی اور نظریات سے متعلق معلومات اکٹھی کر رہی ہے، جس پر مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دوسری جانب کشتواڑ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک حملے میں بھارتی فوج کا ایک حوالدار ہلاک، جبکہ ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر سمیت 7 اہلکار زخمی ہوئے۔ بھارتی فورسز کے حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں محاصرہ مزید سخت کرنے کے لیے بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور اسپیشل آپریشنز گروپ کے اہلکاروں پر مشتمل اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام مظفر آباد میں کشمیر بنے گا پاکستان ورکرز کنونشن کی تفصیل ہمارے نمائندے عادل احمد خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل صورتحال سے نکل کر ترقی کی جانب گامزن ہے۔ جنوبی افریقہ میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 75 برس سے کشمیریوں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود بھارت کی ہردرمی نے خطے کا امن داؤ پر لگا رکھا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ پاکستان کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں، بات وہی ہوئی اسی ٹائم تک اس خطے میں امن اور پیس نہیں آئے گی جب تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو۔ ہمارا واٹر ریکارڈ ہے اکثر انڈیا والوں کا، وہی اس کو استعمال کرنا کہ ایک ریکارڈ معاہدہ موجود ہے کہ کتنی پانی پاکستان کو ملے گی ان کے ریور سے، وہ نیلم میں، جہلم میں اور جو بھی ہے، تو اس کو ہم یہ ہتھیار استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق 5 رکنی پارلیمانی وفد کے ہمراہ چین پہنچے تو بیجنگ ایئرپورٹ پر نیشنل پیپلز کانگریس کے ارکان نے ان کا خیر مقدم کیا۔
दौरे के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक चीन की आला पार्लिमानी और सियासी क़यादत से पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। पार्लिमानी वफ़द चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्कूल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूज़ियम का भी दौरा करेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पार्लियामेंट हाउस में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर से उनकी भाभी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। उन्होंने सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील खान, सेनेटर सलीम अडवीवाला, नासिर भट्ट, ताहिर खलील सिंधु, दोस्त मोहम्मद, ओन अब्बास बप्पी, सैयद अली ज़फ़र और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी इज़हार ताज़ियत के लिए डिप्टी चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में गए। सियासी समाजी क़बाइली शख्सियात की बड़ी तादाद ने भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट से ताज़ियत की और मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर ने कहा कि अहले खाना के साथ हमदर्दी और ताउन पर तमाम शख्सियात का मशकूर हूँ। नाज़रीन, खेल में आपको कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली कामयाबी समेटी। अपने दूसरे मैच में स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। हरारे में पाकिस्तान अंडर 19 ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। स्कॉटलैंड की टीम 48.1 ओवर्स में 187 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान थॉमस नाइट ने सबसे ज्यादा 37 रन स्कोर किए। फिनले जोन्स 33 और ओली जोन्स 30 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर 19 ने 188 रन का हदफ 43.1 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। उस्मान खान ने 75 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे। अहमद हुसैन ने 47 रन स्कोर किए। समीर मिनास ने 28 जबकि कप्तान फरहान यूसुफ ने 18 रन बनाए और वो क्रीज पर मौजूद रहे। उस्मान खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलवी टीम की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलवी टीम के अहम खिलाड़ी पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बायस दौरे में शामिल नहीं होंगे। तीनों खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप से कबल मुकम्मल फिटनेस हासिल करने के लिए आराम दिया गया है। नेथन एलिस और ग्लेन मैक्सवेल को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैच 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से वेस्ट हैम यूनाइटेड लंदन के प्रीमियर लीग के कोच राशिद अब्बा ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में फुटबॉल के फ़रोग़ और टैलेंट को सामने लाने पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट मौजूद है, ताहम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने दरकार हैं। मुलाकात में राशिद अब्बा के हमरा मुस्लिम हैंड्स के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इदारे के नुमाइंदों ने आलमी शोहरत याफ्ता कोच के दौरे के अगराज़ व मकासद और फुटबॉल के खेल के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर आगाह किया। इस मौके पर आलमी शोहरत याफ्ता कोच राशिद अब्बा ने चेयरमैन सेनेट को वेस्ट हैम यूनाइटेड की शर्ट भी पेश की। इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। जुबैर अहमद सिद्दीकी और नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।